Breaking news coming in of Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal, who has been summoned for the sixth time by the Enforcement Directorate, will not be appearing before the ED today. Now, the ED summons, according to the Aam Aadmi chief, is illegal, and the matter is now in court. Instead of sending summons, wait for the court decision, is what the Delhi Chief Minister has gone on to say. Do remember that he was called on the 2nd of February, he was called on the 18th of January, the 3rd of December, as well as he was called on the 21st of December and the 2nd of November. So now in its complaint, the Enforcement Directorate has alleged that the Delhi Chief Minister intentionally did not want to obey the summons and kept on giving lame excuses. If a high-ranking public functionary like him disobeys the law, it would set out a wrong message. We have my colleague Sharad Sharma joining us. So Sharad, of course, the Enforcement Directorate, they're putting out in bold letters that this sets a very wrong example for the common man when it comes to the Aam Aadmi Party chief who has skipped summons. This was the sixth summon. Just take us through on what grounds. I mean, he has been calling this illegal. He's saying it's up in court, which is why he refuses to attend, the questioning as far as the Aam Aadmi Party chief is concerned. Also, another thing being that, he went on to talk about how had Hemant Soren switched over to the BJP, he would not be in jail right now, is what, he went on to mention just a day before his sixth summon. देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से इन समन्स को, ईडी के समन्स को इलीगल बताया है, तो इसीलिए और ईडी ने जो है कोर्ट में शिकायत भी की है, जिसमें अब 16 मार्च जो है डेट तय हुई है, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर ईडी के समन्स को वो क्यों कंप्लायंट नहीं कर रहे हैं। तो यही सारी दलील आम आदमी पार्टी ने दी है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर इस तरह के समन्स भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। एडवाइस भी किया है उन्होंने ईडी को कि इस तरह के समन भेजने के बजाय, क्योंकि अब आप खुद ही कोर्ट में चले गए हैं, तो कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ जब एडवाइस दे दी है तो अब आगे भी जब तक ये मामला कोर्ट में सेटल नहीं होगा, या तो कोर्ट कुछ कहे इस बारे में, या फिर जब तक सेटल नहीं होगा तो ये एक स्टैंडिंग पोजीशन है आम आदमी पार्टी की कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और कोर्ट को फैसला करना है कि समन इलीगल हैं या लीगल हैं। हालांकि अभी तक कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बारे में कोई दलील नहीं रखी गई है, क्योंकि सुनवाई ही ठीक से नहीं हो पाई है। तो जब या तो कोर्ट इस बारे में पहले कुछ कह दे या फिर 16 मार्च में कुछ तय हो, उससे पहले अभी जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। Sharad, on various grounds, he has been skipping the summons from November. On some occasions, he said that this is illegal. On some occasions, he says he has nothing to hide. Then he's gone on to say that it's not very clear whether he's an accused or, in the case or not, or is he a witness. But now the grounds that he's using is that this is sub judice. He's also, the crux of the matter is that he fears that he will be arrested if he goes in for questioning, which is why he's also mentioned Hemant Soren just a day before this summon on Sunday. Yesterday he went on to say that had Hemant Soren hopped over to the BJP, he wouldn't be behind bars. अभी तो देखिए, ये कई सारी दलीलें हैं जो शुरू से ही दी जा रही हैं। ये समन इलीगल हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये तो पहले ही दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जो ईडी को पहला रिप्लाई भी किया था उसमें यही बात कही गई थी कि ये इलीगल समन्स हैं और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन क्योंकि हुआ ये था कि ईडी कोर्ट में चली गई थी और कोर्ट में जाने के बाद ये मामला जो है अब अगली डेट इस पर आ गई, तो या तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट जाते और फिर ये होता कि कोई ईडी को स्टे दिया है नहीं दिया। लेकिन हुआ ये कि ईडी पहले कोर्ट में चली गई और सब ये मान रहे थे कि जब मामला ही कोर्ट के अंदर है तो फिर जब तक अब जो करना है वो कोर्ट ने करना है, क्योंकि कोर्ट के सामने जब अरविंद केजरीवाल ये बात रखेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो संभव है कि कोर्ट भी ईडी से ये पूछे कि आप किस नाते इनको बुला रहे हैं, ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या आप उनके जवाबों में कुछ कहना चाहेंगे, या क्या आपके पास एविडेंस है जो आप एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह से क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं संभवतः होनी है, जो अभी नहीं हुई हैं। तो इसीलिए अब क्योंकि मामला कोर्ट के सामने है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि जो समन्स हैं
वो लीगल हैं या इलीगल हैं, या जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी साइड का कहना है। अभी ईडी इस पर क्या रिप्लाई करेगी ये हमें अभी देखना होगा। क्या वो इस जो दलील दी जा रही है उस पे उनको ठीक लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, या वो एक बार इसको कोर्ट में फिर से चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि देखिए दोबारा से हमने भेजा था, उसके बाद भी ये छठी बार है ये नहीं आए हैं। लेकिन बहुत संभावना कम लगती है कि जो मामला कोर्ट में पहले से ही है तो दोबारा से कोर्ट में ईडी जाकर ये तो नहीं कहेगी कि देखिए वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कह सकती है कि देखिए कोई स्टे नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं। Thank you so much, Sharad. Of course, Arvind Kejriwal there skipping the sixth summoned by the Enforcement Directorate on the same day when Mahua Moitra has been summoned by the Enforcement Directorate.